Hello dear children, this is Preeti Chabra and I welcome you all to Learning Never Stops. Today we are going to start with a new chapter of biology. This is heredity and evolution. Term 2 mein, according to the reduced syllabus, you don't have to study evolution part. So we'll be doing with the heredity portion in this video. Fine. Now to start with, we all know that organisms of the same species, they are similar. फाइन इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज के, दे आर अलाइक, एक जैसे होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, इफ यू टॉक अबाउट, देन ऑल ह्यूमंस आर सिमिलर. सो आर कैट्स, सो आर द पपाया ट्रीज, मैंगो ट्रीज. सो आप किसी भी अलग अलग स्पीशीज को अगर देखो, ऑब्जर्व करो, तो जितने भी उस पर्टिकुलर स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर एंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी organisms of the other species. है ना? ये जो similarity है, ये क्यों है? Because all the organisms of that particular species have a basic, you may say, a basic similar body design. Humans का एक basic body design है. हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं. We have 2 eyes, 2 ears, and the same body structure is possessed by every human on the earth. Fine. ये basic body design है. Likewise, एक cat का एक basic body design है which is very much different from that of a dog. Fine. If we go talk about plants, then mango trees, all the mango trees, they have a basic body design which is very similar to each other and is very different from that of any other tree, say papaya tree. Fine. तो ये जो बेटा बेसिक बॉडी डिज़ाइन है ना, ये मिलता है उन ऑर्गेनिजम्स को, सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स को, by a process called reproduction. So what is reproduction? Reproduction is the ability of living organisms. वो plants हो सकते हैं, animals हो सकते हैं, microorganisms, कोई भी जो living organism है, उनकी ability है to produce new individuals. We all know कि reproduction से it is a process whereby new individuals are produced. Parents से new individuals produce होते हैं, which are the new individuals are similar to themselves. यानी वो अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं. That means, what does this mean? कि cats will never give birth to dog. Dogs can never give birth to a cow. Fine. तो ये जो reproduction process है, this is the ability of, ये ability है living organisms की to produce new individuals similar to themselves. ये similar होते हैं because इस process से एक सिमिलर जो बेसिक बॉडी डिज़ाइन है वो मिलता है न्यू इंडिविजुअल को अपने पेरेंट्स से. ठीक है. नाउ ये रिप्रोडक्शन, इट कैन बी एसेक्सुअल, इट कैन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यहाँ पे दिस इज एसेक्सुअल. यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है ना, दैट इज मोनोपेरेंटल. दिस इज मोनो मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स वन. तो मोनोपेरेंटल यानी जो पेरेंट है जिससे, यानी सिंगल पेरेंट की एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्व्स. सपोज वी टॉक अबाउट अ बैक्टीरिया. फाइन. सपोज दिस इज द बैक्टीरिया वी आर टॉकिंग अबाउट. This bacterial cell, this is a monoparent cell. That means this single bacterial cell is going to give birth to, going to produce new individual. Single cell में भी, asexually भी, this reproduction process, in इसकी जो definition है remains the same. इसमें भी जो new individual produce होंगे वो होंगे similar to themselves. Fine. तो यहाँ पे जो single cell है, this is going to divide into 2. Okay. and ये जो 2 होंगे, ये होंगे 2 daughter cells जो बहुत हद तक almost होंगे, almost carbon copy होंगे. कार्बन कॉपी मतलब एकदम सिमिलर. ठीक है. एकदम कार्बन कॉपी जैसा ये वैसे ये दोनों. फाइन. नाउ अगेन this will also go further division and this will also give rise to 2 daughter cells, 2 daughter cells, and this will also give rise to 2 daughter cells, and this will continue. These will also give rise to 2 daughter cells and likewise it will continue. तो ये जो है ना, ये almost carbon copy. Why am I using the word almost carbon copy? क्योंकि ये तो सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल से जब 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी
तो इसमें जो भी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम होगा ही होगा, बहुत हद तक, काफ़ी हद तक ये बिल्कुल सेम भी होंगी, बट लिटिल यू मे से सटल डिफरेंसेस आ सकते हैं किसी जनरेशन में। सपोज यहाँ से यहाँ डिफरेंस आया, इफ़ नॉट हियर देन यहाँ से यहाँ, सपोज इसमें when this particular cell, this cell gave rise to these two cells. Among these two, suppose this is the cell which is going to give rise to two another cells, daughter cells. तो उसमें एक सेल में suppose slight कोई डिफरेंस आया। डिफरेंस क्यों आता है? इस केस में डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ देयर मे बी सम inaccuracies while copying of DNA. ये जो सेल डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बेसिकली सेल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू। दैट मीन्स इसका जितना भी DNA है वो कॉपी हो रहा है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। कॉपी होता है और उसकी जो दो कॉपीज बनती हैं वो डिवाइड हो जाती है इनटू दीज टू सेल्स। लाइकवाइज इसका भी जो DNA है अगेन फर्दर डिवाइड होगा, कॉपी होगा, देन डिवाइड होगा इनटू टू। और लाइकवाइज generation, कुछ ही आवर्स में you get thousands of generations of this bacteria and all the new daughter cells जो प्रोड्यूस होंगी वो बिल्कुल ऑलमोस्ट कार्बन कॉपी होंगी, बिकॉज उसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे अपने जो इनके न्यू इंडिविजुअल्स आ रहे हैं उसमें ट्रांसफ़र होते चले जाएंगे। बट लिटिल वेरिएशंस इसमें भी, थोड़े बहुत डिफरेंसेस इसमें आ सकते हैं किसी जनरेशन में, जो फिर कैरी फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट जनरेशन में भी, because of some inaccuracies which are possible while copying of DNA. Fine. अब ये जो वेरिएशंस होंगे तो वेरिएशंस की वजह से जो नया वेरिएंट आएगा, सपोज हल्का बहुत किसी एक, सपोज यहाँ पे जो मैंने बताया इसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ भी वेरिएशन आता है उस बैक्टीरियल सेल में विच इज़ डिफरेंट, विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेल्स अभी तक के जनरेशन में, उसमें थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस आता है तो दैट मेक्स अ लिटिल डिफरेंस इन इट विच मेक्स इट अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। तो उसकी वजह से उस वेरिएंट में क्या इश्यूज होने वाले हैं, इन सेंस कि वो बाहर एनवायरमेंटल कंडीशंस में सस्टेन कर पाएगा वो वेरिएंट या नहीं कर पाएगा। इफ़ नहीं कर पाएगा तो दिस विल बी लॉस्ट हियर इटसेल्फ। इफ़ कर पाएगा तो फर्दर जनरेशन में ये कैरी होंगे ये जो वेरिएशंस हैं, एंड कुछ नए वेरिएंट्स आएंगे जो ऑब्वियसली नए एनवायरनमेंट में सस्टेन कर पाएंगे। तो इस तरह से होता है एक टॉपिक जो हम नहीं पढ़ने वाले, इवोल्यूशन। एक नया जनरेशन इवॉल्व होता है ना, इवोल्यूशन होता है विच इज़ स्लाइट डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। नाउ आपके पास इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में दो वेरिएंट हो गए, अगर ये सस्टेन कर लेता है तो दो वेरिएंट हो गए, दैट मीन्स इवोल्यूशन हुआ, कुछ नया आया। तो वो है टॉपिक एक इवोल्यूशन, जो इस टर्म में आपको नहीं करना। तो लेट अस नॉट गो दैट डीप फॉर दिस टॉपिक। तो अभी इफ़ आई टॉक अबाउट द एसेक्सुअल एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हमने एसेक्सुअल में देखा कि किस तरह से जो भी न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट कार्बन कॉपी होते हैं अपने पेरेंटल सेल के। कमिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नाउ it has an added advantage. Sexual reproduction has an added advantage over the asexual reproduction. क्या है वो advantage? It introduces variation. Now what is variation? यहाँ पे भी हमने देखा ये variation यानी little difference, यानी differences। यहाँ पे वो difference बहुत subtle था, but sexual reproduction has an added advantage. यहाँ पे जो variation होने वाला है ना, ये काफ़ी diverse होने वाला है, ठीक है। तो ये जो वेरिएशन होने वाला है यानी कुछ डिफरेंसेस होने वाले हैं बिटवीन, यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंसेस बिटवीन द यंग वंस ऑफ द सेम स्पीशीज और इवन द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम पेरेंट। अब मैं कुछ टर्म्स यूज़ कर रही हूँ जो मैं अभी आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि ये एडवांटेज कैसे है, वेरिएशन होना एडवांटेज कैसे है। एडवांटेज ऐसे है कि सपोज वेरिएशन अगर नहीं होते तो अगर एक स्पीशीज़ में, सपोज बात करें, सपोज ह्यूमंस की बात करते हैं, मान लो कि ह्यूमंस में भी इसकी ही तरह वेरिएशंस नहीं होते तो हम सब एक जैसे दिखते। आपके पार्टनर्स जो आपके साथ बैठ के पढ़ते हैं, पूरी क्लास एक जैसी दिखती, तो कैसी होती दुनिया, कैसी होती, मतलब पूरी दुनिया में थ्रू आउट द वर्ल्ड आप कहीं पे भी चले जाओ, फाइन। तो जस्ट इमेजिन कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे एक जैसे हैं, तो कैसा होता। वो सारे एक जैसे नहीं हैं बिकॉज वेरिएशन है, फाइन, बिकॉज वेरिएशन। एंड व्हाई ओनली द होल स्पीशीज वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम उस पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन के एक छोटे से यूनिट की बात करें, दैट इज़ अ फैमिली, तो फैमिली में
चिल्ड्रन में रिजेम्बलेंसेस होते हैं, है ना. जब कोई न्यू बॉर्न बेबी आता है फैमिली में, तो जो स्पेशली जो एल्डर्स होते हैं, दे टॉक अबाउट द न्यू बॉर्न बेबी एज की इसकी तो आइज़ बिल्कुल मम्मा जैसी हैं, अपनी मम्मा की तरह है, इसकी नोज़ बिल्कुल अपने पापा जैसी है. सम से कि कुछ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं. देन और क्लोज ब्लड रिलेशंस जैसे मासी जैसी है, बुआ जैसी है, एंड सो ऑन. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दिस, है ना. अपने बड़ों को बात करते हुए किसी भी न्यू बॉर्न बेबी को देखकर वो फटाफट से देखने लगते हैं कि किससे वो बेबी रिजेंबल कर रहा है ना. दैट मीन्स अगर हम बहुत पूरे स्पीशीज़ के एक छोटे से यूनिट की बात करें, यानी हम एक स्पेसिफिक फैमिली की बात करें, तो रिजेंबलेंसेस वाले जो फैक्टर, ऐसे तो पूरे स्पीशीज़ में रिजेंबलेंसेस है कि बॉडी जो डिज़ाइन है बेसिक वो सबका सेम है. बट जब हम छोटे यूनिट में आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर फैमिली में आ जाते हैं, तो वो रिजेंबलेंसेस जो है वो मैक्सिमम हो जाते हैं. लाइक आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल वो मैच नहीं है, ठीक है, बॉडी डिज़ाइन सेम है, बट आप अपने ब्रदर सिस्टर या फिर अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपके काफ़ी रिजेंबलेंसेस हैं. फाइन. तो ये जो रिजेंबलेंसेस हैं, अगर ये रिजेंबलेंसेस बहुत ही ज़्यादा हो, ऐसा होता है कि आप पूरी फैमिली, एक सारी फैमिली, सपोज आप स्पीशीज़ की पूरी स्पीशीज़ की बात छोड़ दो, हम इस तरह से समझते हैं कि सपोज एक पूरी की पूरी फैमिली जनरेशन बाय जनरेशन जैसे ग्रैंड पेरेंट्स दिखते हैं, सेम पेरेंट्स दिखते हों और सेम आप दिखते हों और फर्दर जनरेशन में बिल्कुल ही सेम आए, तो ऐसा होता है कि सारे के सारे उस जनरेशन बाय जनरेशन उस पूरी फैमिली में सेम हो? ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए. तो ये है एडेड एडवांटेज. तो हियर वी कैन सी कि वेरिएशन होना एक एडवांटेज है ना. और ह्यूमंस में ही नहीं, दिस एडवांटेज कैन बी सीन इन आपने अगर डॉग्स हैं तो वी टॉक अबाउट डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, है ना. डिफरेंट ब्रीड्स जो होती हैं डॉग्स की वो अलग अलग दिखती हैं. इवन सेम ब्रीड्स में भी डॉग में जिनके पेट्स हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से डिफरेंसेस होते हैं. हाँ, ह्यूमंस में ये बहुत ज़्यादा होते हैं. फाइन. सो ये variation, what is variation? The differences in the individuals of the same species or even among the offsprings of the same parents के जो offsprings होंगे. Now offspring means, offspring को हम progeny भी कहते हैं. that is कुछ नहीं, the new individual, ठीक है, जो new young one, ठीक है, that new young one आप बोल सकते हो, new individual बोल सकते हो. it is also called progeny, it is also called offspring. तो ये सारे same terms हैं. तो ये जो variation है ना, ये इंट्रोड्यूस होता है डाइवर्स फॉर्म में. काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है एज़ कम्पेयर टू हियर. तो ये वेरिएशन होता है ऑफस्प्रिंग में. क्यों होता है ये वेरिएशन ऑफस्प्रिंग में? किस तरह से होता है वेरिएशन ऑफस्प्रिंग में? एज इट कंबाइंस द ट्रेड्स, अनदर टर्म हियर टू बी अंडरस्टूड, एज इट कंबाइंस. कुछ कंबाइन हो रहा है. क्या कंबाइन हो रहा है? ट्रेड्स ऑफ टू पेरेंट्स. जैसे हमने यहाँ पे देखा, दिस इज एसेक्सुअल इज मोनोपेरेंटल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइपेरेंटल, है ना. बाइपेरेंटल, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, फादर एंड द मदर, गिविंग राइज टू द न्यू इंडिविजुअल्स which introduces variations in the offspring, that is the new individual, because it combines the traits of two parents. Now what are the traits? Traits are the characters or the characteristics. कैसे characteristics? Suppose the texture of your hair, curly होंगे कि नहीं होंगे, color of your eyes, जो eyeball का color होता है, brown होगा, black होगा, your height, your shape of the fingers, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कहते हैं ना ये तो जीन्स में है, इसके जेनेटिक है. कुछ हैबिट्स, कुछ सर्टन हैबिट्स, वैसे तो ज़्यादातर हैबिट्स एक्वायर्ड होती हैं, हम एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनको एक्वायर करते हैं, अपने हॉबीज़ के अकॉर्डिंग एक्वायर करते हैं, बट सर्टन हैबिट्स होती हैं जो वी कैन कोरिलेट कि ये पेरेंट्स जैसी हैं. यानी जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, हमारी हाइट कैसी होगी, कंप्लेक्शन हमारा कैसा होगा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, यानी हमें जेनेटिकली वो मिलता है. तो ट्रेट्स हो गए वो कैरेक्टर्स. फाइन. जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हम कहते हैं उसे हम बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं ट्रेट्स. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइपेरेंटल. इट हैज़ एन एडेड एडवांटेज. इट इंट्रोड्यूसेस वेरिएशन in the offspring as it combines the traits of two parents. Obviously,
यहाँ पे हमने क्या देखा, ये सिंगल ही सेल है, दिस इज द सिंगल पेरेंट, ये इट इज कीप ऑन डिवाइडिंग. बट यहाँ पे इफ सपोज ये दो सेल्स इन्वॉल्व हैं, दीज आर सेल्स फ्रॉम द डिफरेंट बॉडीज, दैट इज वन इज फ्रॉम द फादर एंड द अदर इज फ्रॉम द मदर, व्हेन दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू गिव राइज टू अ न्यू वन, तो ऑब्वियसली कुछ ट्रेट्स आपको पेरेंट्स से, फादर से मिलते हैं यंग वंस को, और कुछ ट्रेट्स जो होते हैं यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं मदर से भी मिलते हैं. फाइन. सो ऑब्वियसली जो उनका कॉम्बिनेशन होने वाला है, कुछ तो बिल्कुल एज इट इज मिलेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन में मिलेंगे. तो जो इनका कॉम्बिनेशन होने वाला है वो ना इसकी कॉपी हो सकता है ना इसकी कॉपी हो सकता है, बट क्योंकि इन दोनों के ही कॉपी से इन सेंस के कॉम्बिनेशन से मिले हैं, तो इन दोनों से सिमिलर तो होना ही है. बट क्योंकि दो लोगों से कंबाइन होकर एक कुछ बन रहा है, तो डिफरेंसेस भी होने हैं. दैट इज वेरिएशन. ठीक है. तो हम जनरेशन की बात करें, सपोज ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, गिविंग राइज टू अ सन. ठीक है. तो ये हो गए सन. अगर अनदर ग्रैंड पेरेंट गिविंग राइज टू the daughter. Now suppose these two combined giving rise to another new one. तो यहाँ पे क्या हुआ, सपोज ये मॉम है, ये फादर है, तो ये हो गए मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और ये हो गए पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स. तो ये ग्रैंड पेरेंट्स की जो भी ट्रेड्स हैं वो मदर ने एक्वायर किए, और इन दोनों के जो ट्रेड्स हैं यानी जो कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस फादर ने इनहेरिट किए, एक्वायर किए. ठीक है. एंड देन फाइनली जब इन दोनों ने कंबाइन, इनके ट्रेट्स ने कंबाइन किया, तो एक न्यू यंग वन प्रोड्यूस हुआ. अब ऑब्वियस है कि इसके ट्रेट्स इनसे भी रिजेंबल होंगे और इनसे भी. सो दिस वे जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, ब्लड रिलेशंस जो होते हैं, उनसे हमारे काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हद तक रिजेंबल करते हैं. बट वेरिएशंस तो होने ही हैं और होने चाहिए भी, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है. नाउ ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं और ये जो वेरिएशंस आते हैं ना बेटा, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. ठीक है, वो चांस की बात है कि आपको कौन से ट्रेट्स किससे मिल रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, बट आई मीन टू से कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि बस हो सकता है कॉम्बिनेशन हो गया हो और वेरिएशन हो गया हो. वेरिएशन होना ही है, ये कोइंसिडेंटल नहीं है. ये जो वेरिएशन है या जो रिजेंबलेंसेस हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं, है ना. जो न्यू यंग वन है वो इन जो ट्रेट्स को एक्वायर करते हैं. ठीक है. ये कोइंसिडेंटल नहीं है कि होना है तो हो गया वेरिएशन, नहीं होना तो नहीं हुआ, इन एज इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें वेरिएशंस होते ही हैं या रिजेंबलेंसेस होते ही हैं. तो ये जो रिजेंबलेंसेस हैं, ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो न्यू जनरेशन है या जो न्यू द प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग, ये एक्वायर करते हैं. ठीक है. इनमें वो ट्रांसमिट होते हैं. फाइन. तो ये जो ट्रांसमिशन है ना, द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट्स और द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स, अब वो रिजेंबलेंसेस भी हो सकते हैं और वेरिएशंस भी हो सकते हैं. दोनों ही जो ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड हेरिडिटी. Fine. So what is heredity? Heredity is the transmission of characters, resemblances as well as variations. ठीक है. यानी similarities भी, resemblances भी, at the same time differences भी. ठीक है. तो transmission of characters from one generation to the next is called heredity. फाइन. इसे ही कहते हैं हेरिडिटी. जो ट्रांसमिट होते हैं ना कैरेक्टर्स पेरेंट्स से न्यू जनरेशन में, उसे कहा जाता है हेरिडिटी. और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से ये ट्रांसफ़र होते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. ठीक है. जिस प्रोसेस की वजह से ये हेरिडिटी यानी ये जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, उस प्रोसेस को कहा जाता है इनहेरिटेंस. फाइन. नाउ एक्चुअली क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, वो ट्रेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं. तो ये ट्रांसफ़र कैसे हो रहे हैं, है ना. हाउ द ट्रेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वाज वर्कड बाय मेंडल, ग्रेगर मेंडल. ओके. ग्रेगर मेंडल ने वर्क किया था कि किस तरह से ये ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं
यानी ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द यंग वंस। ग्रेगर मेंडल, उनको साइंस का, मैथ्स का बहुत नॉलेज था एंड ही वांटेड टू बिकम अ टीचर, बट समहाउ लक डिडंट फेवर हिम एंड ही कुडंट बिकम अ टीचर। बट देन जो काम उन्होंने किया, ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स जो भी हम पढ़ रहे हैं, हेरिडिटी, ये ट्रेट्स, ये सब कुछ जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये जो बेसिक जिन्होंने ये बताया, जिन्होंने ये समझाया कि ये जो आज हम ये पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ये किस तरह से होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये बताया हमें ग्रेगर मेंडल ने। ओके, ग्रेगर मेंडल। एंड दो ही couldn't become a teacher but he became teacher of teachers। सारे टीचर्स को उन्होंने पढ़ा दिया, बता दिया कि किस तरह से जो ट्रेड्स हैं वो पास ऑन होते हैं, इनहेरिट होते हैं, ठीक है, प्रोजेनीज में। ही स्टडीड की कुछ डिस्क्रीट कुछ स्टेबल यूनिट्स हैं, कुछ अलग से स्टेबल यूनिट्स हैं जिनको उन्होंने कहा फैक्टर्स, जिनको उन्होंने नाम दिया फैक्टर्स, जिसे आज हम जानते हैं जीन्स के नाम से। जो जीन्स हम पढ़ते हैं ना, ये बताया कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है, कुछ सटल, कुछ डिस्क्रीट अलग से कुछ स्टेबल यूनिट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, कुछ जो हैं जिसको ग्रेगर मेंडल ने नेम किया फैक्टर्स, विच वी नो एज जीन्स। तो ये फैक्टर्स हैं, कुछ उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये जो जीन्स है, जो फैक्टर्स हैं, ये ही वो चीज़ है जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द न्यू इंडिविजुअल्स, एंड वहाँ पे न्यू इंडिविजुअल्स में वो सारे ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं जो एक्चुअली उनको मिलते हैं उनके पेरेंट्स से, यानी वो सारे ट्रेड्स, रिजेम्बलेंसेस भी और वेरिएशंस भी। तो वो जो सारे ट्रेड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं बिकॉज ये जीन्स, ये फैक्टर्स जिसको उन्होंने कहा, वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग, द न्यू इंडिविजुअल। और वहाँ पे जीन ट्रांसफ़र होने के बाद वो जीन्स एक्सप्रेस करते हैं, यानी ये जीन्स हैं जो कैरी करते हैं वो सारा जेनेटिक, जिसे हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं, वो सारा हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। यानी जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ, व्हाट आर जीन्स? दीज आर द यूनिट्स ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। हेरिडिटरी, जितना भी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, हेरिडिटी अभी हमने देखा क्या है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो ट्रांसमिट हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इन्फॉर्मेशन इन सेंस कि जितने ट्रेट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम द पेरेंट टू द यंग वन, ये जीन्स जो है ना उस हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन का यूनिट है। ये जितना information है, it is there in the genes. The genes are getting transferred from the parents to the offsprings and there the traits are expressed। यानी सारे traits present हैं, जो characters present हैं वो हैं in genes में। Like we say कि ये तो genetic है। काफ़ी सारी diseases भी होती हैं जो genetic होती हैं, जो हम अभी डिटेल में करेंगे जब चैप्टर नेक्स्ट फर्दर, तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से कुछ डिजीज़ेस भी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, यानी वो जीन्स में होती हैं। कुछ डिजीज़ेस होती हैं जो जीन्स में होती हैं, जो आ सकती हैं द प्रोजेनी में, यानी ऑफस्प्रिंग में। वो जीन्स अगर ट्रांसमिट होते हैं और वहाँ पे वो ट्रेट्स एक्सप्रेस होते हैं तो वो डिजीज़ेस भी एक्सप्रेस, इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे ऑफस्प्रिंग्स में आएंगे। तो यही सारी जो चीज़ें हैं, यही हमें ग्रेगर मेंडल ने बताया कि किस तरह से जीन्स ट्रांसमिट होते हैं और किस तरह से ये पॉसिबिलिटी है कि कौन से ट्रेट्स एक्सप्रेस होंगे या कौन से ट्रेट्स एक्सप्रेस नहीं होंगे, बिकॉज ये तो कॉम्बिनेशन होने वाला है। नाउ कॉम्बिनेशन होने वाला इन सेंस कि जो भी न्यू इंडिविजुअल है उसके खुद के भी कुछ ट्रेट्स हैं, फाइन, जैसे कि हमने देखा वो एक्चुअल पूरी कॉपी तो नहीं है, रिजेंबल करता है, डिफरेंसेस हैं। दैट मीन्स डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ कि उसके खुद के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ट्रेट्स हैं, कुछ उसे पेरेंट्स से मिले हैं और पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ है जिसकी वजह से अब वो ट्रेट्स उस चाइल्ड, उस पर्टिकुलर न्यू वन के हैं, यंग वन के हैं, उस ऑफस्प्रिंग के हैं, जो उसके पेरेंट्स में नहीं थे। उन पेरेंट्स के कॉम्बिनेशन, ट्रेट के कॉम्बिनेशन की वजह से उस चाइल्ड में आए हैं, है ना। तो ये हमने देखा। तो ये जो जीन्स हैं, किस तरह से कॉम्बिनेशन, क्या रूल्स होते होंगे, क्या रूल्स फॉलो होते होंगे जब ये जीन्स जब ट्रांसमिट होते होंगे
हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जब ट्रांसफ़र होती होगी प्रोजेनीज में, तो किस तरह से ट्रेट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शो होते होंगे ऑफस्प्रिंग्स में, क्या रूल्स इन सेंस की फॉलो होते हैं, इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं, क्या रूल्स हैं, ये हमें बताया समझाया ग्रेगर मेंडल ने। इन्होंने वर्क किया ऑन द पी प्लांट, ठीक है, पी मटर जो होते हैं ना, पी प्लांट, इनके प्लांट को इन्होंने जनरेशन बाय जनरेशन स्टडी किया, इनके काफ़ी सारे कैरेक्टर्स, इसकी हाइट, इसका कलर, सीड का शेप और काफ़ी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्होंने अलग अलग ट्रेट्स अपने साइंस और मैथ्स के नॉलेज से इनके जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके कॉम्बिनेशंस को स्टडी किया एंड गेव अस सर्टेन रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स। किस तरह से ये ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं, इसके जो रूल्स फॉलो होते हैं, ये हमें बताए ग्रेगर मेंडल ने, जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर कि क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में और कहाँ क्या कुछ बेसिक टर्म्स की मीनिंग्स। सो आई विल स्टॉप माय वीडियो हियर फॉर टुडे। होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, होप टू सी यू ऑल देयर, बट फॉर दैट यू नीड टू सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ़ यू फाइंड द कंटेंट हेल्पफुल, do share it with your friends also, and till then take care, stay safe and bye bye.